Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to the 11th lecture in Advanced Topics in Change Management. Today we are going to talk about organizational size, growth and decline and the particular relationship with change management. What are our objectives today? Today our objectives are to consider how the size of an organization affects its structure, to explore the organization life cycle, to examine the need for bureaucracy as a means of control in large organizations, to explore ways in which organizations can be revitalized. So what are a few of our main objectives today? आज हम क्या देखना चाहते हैं, आज हमारे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? हम ये देखना चाहते हैं कि साइज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसके स्ट्रक्चर को कैसे अफेक्ट करता है. वी वांट टू एक्सप्लोर ऑर्गेनाइजेशन लाइफ साइकिल. वी नीड टू एग्जामिन कि ब्यूरोक्रेसी क्या है और इज ब्यूरोक्रेसी एन एफिशिएंट वे टू कंट्रोल is bureaucracy an efficient way of controlling large organizations. We want to also explore how organizations can be revitalized. So let's start with size and structure. Increasing number of employees leads to increasing formalization of procedures, increasing role specialization, more delegation to senior managers. So as a company grows and its size increases, the number of employees also grow. So when the number of employees of an organization grow, this means that they need formalized rules and regulations now to govern their daily activities or to run their business. They also need specialized roles. They need to delegate power and authority to senior managers so that they can take appropriate decisions at the right time. This can also lead to proportionately fewer top managers but more professionals, especially in organizations between 100 and 2000 employees. अब dear students, आप अपने राइट साइड पे स्लाइड आपको नज़र आ रही होगी. उसमें आप देख सकते हैं कि ये एक ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट है ऑर्गेनाइजेशन लाइफ साइकिल का. और इस चार्ट पे आप देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस पे वी हैव स्टेजेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट. अब वो स्टेजेस क्या हैं? वो एंटरप्रेन्योर स्टेज है, कलेक्टिविटी स्टेज है, फॉर्मलाइजेशन स्टेज है और एलैबोरेशन स्टेज है. जबकि एक्स एक्सिस पे वी हैव ऑर्गेनाइजेशन साइज. एंड एज time increases, the organizations grow in their size, and from small organizations they become large organizations. So we are now going to see that how the needs of the business change as they grow in their size and as they progress from entrepreneur stage to elaboration stage, and what are some of the challenges they pose as they grow. So the first very stage is entrepreneur stage. देखिए entrepreneur stage क्या होती है? entrepreneur stage में basically एक creative individual या group of individuals जो हैं, अगर उनके जहन में कोई innovative idea है या उनके जहन में कोई creative idea है, वो समझते हैं वो एक मार्केट में या एक सेगमेंट ऑफ मार्केट को या एक निच ऑफ मार्केट को कोई नया प्रोडक्ट मार्केट कर सकते हैं या कोई नई इनोवेटिव सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, तो दे स्टार्ट अ न्यू बिजनेस. अब देखिए न्यू बिजनेस जो है वो एंटरप्रेन्योर स्टेज को, जब एक नया बिजनेस जब उसकी बर्थ होती है या एक नया बिजनेस जब उसको स्टार्ट किया जाता है, तो हम उसको कहते हैं ये कौन सी स्टेज है? ये पहली स्टेज है. और ये पहली स्टेज क्या कहलाती है? एंटरप्रेन्योर स्टेज. देखिए एंटरप्रेन्योर स्टेज में, एंटरप्रेन्योरियल स्टेज में बेसिकली everything is depending upon the creativity of the leader or the creativity of the owner cum leader who has started that particular business. अब इस बिजनेस की सक्सेस के वो किस किस्म का प्रोडक्ट लेके मार्केट में आता है, उसने उस प्रोडक्ट को कैसे स्टडी किया है, उसने उस मार्केट को कैसे एनालाइज किया है कि इस मार्केट में ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट इस पर्टिकुलर सेगमेंट में कामयाब हो सकता है, ठीक है, या नहीं हो सकता, और उसको ये उस पर्टिकुलर या प्रोडक्ट या फिर सर्विस क्या वो कामयाब हो सकती है या नहीं हो सकती. ये सब कुछ उस एक
एंटरप्रेन्योर के या उस एक इंडिविजुअल के क्रिएटिव थिंकिंग पे डिपेंड करता है। या उसके जहन में अगर कोई ऐसा आइडिया है या उसके जहन में कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसको वो समझता है कि वो सक्सेसफुली मार्केट कर सकता है और मार्केट को कैप्चर कर सकता है इन रिलेशन टू हिज कॉम्पिटिटर्स, जहाँ वो कोई नया एक ऐसा यूनिक प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करता है। तो बेसिकली बहुत सारी दुनिया की जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इसी तरह स्टार्ट हुई हैं। फॉर एग्जांपल पर्टिकुलरली टेक्नोलॉजी रिलेटेड जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो हम देखते हैं जहाँ तो वो यूनिवर्सिटी की डॉम में स्टार्ट हुई हैं, जहाँ किसी घर की बेसमेंट में स्टार्ट हुई हैं, ठीक है, और जहाँ फिर वो जो है वो किसी एक छोटे से कमरे से उन्होंने स्टार्ट लिया और विद टाइम दे हैव बिकम वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशंस। बहुत सारी फेमस एग्जांपल्स हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट। अब अगर हम माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट जो है वो एक बंदे जो है मिस्टर जो उसका ऑनर है, जो उसका चेयरमैन है बिल गेट्स, उसने माइक्रोसॉफ्ट जो है वो अपनी यूनिवर्सिटी की डॉम से स्टार्ट की, ठीक है। उसके जहन में आइडिया था कि जी किस तरह सॉफ्टवेयर्स डेवलप हो सकते हैं, जो सॉफ्टवेयर्स कंप्यूटर्स में यूज़ हो सकते हैं। तो उसने माइक्रोसॉफ्ट की बुनियाद रखी, एक छोटी सी कमरे से माइक्रोसॉफ्ट स्टार्ट हुई और विद टाइम इट हैज़ बिकम वन ऑफ द वेरी बिगेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द वेरी बिगेस्ट एंड मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनीज इन द वर्ल्ड। इस तरह आप देखिए एप्पल की एग्जांपल है, वो भी यूनिवर्सिटी से शुरू हुआ सारा प्रोजेक्ट और आज एक बहुत बड़ी कंपनी है। फिर आप देखिए आईटी में गूगल है, फेसबुक है, ये सारे जो हैं ये एक कुछ क्रिएटिव इंडिविजुअल्स की एफर्ट की वजह से ये कंपनी स्टार्ट हुई और कामयाब हो गई। वो जो इंडिविजुअल्स थे उनके जहन में, जब उनके जो ओनर कम एंटरप्रेन्योर्स थे उनके जहन में सर्टन क्रिएटिव आइडियाज़ थे, उनकी मेहनत थी, उनकी लगन थी और ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुई और ग्रो की विद टाइम। इसी तरह आप देखिए फॉर एग्जांपल अगर हम KFC की एग्जांपल लें तो KFC भी जो है वो देखिए कर्नल जो था उसने एक हाईवे के इंटरसेक्शन पे एक छोटा सा अपना किचन बनाया हुआ था, एक छोटा सा उसका रेस्टोरेंट था जहाँ पे वो ये चिकन रोस्ट करके लोगों को दिया करता था, जो बेचा करता था। जो लोग थे, जो कस्टमर्स थे, वो उन्होंने उसके टेस्ट को बहुत लाइक किया, उन्होंने कहा दिस इज़ समथिंग वेरी स्पेशल। तो आज देखिए KFC जो है दुनिया के हर कोने में मौजूद है, दुनिया के हर बड़े शहर में KFC आपको मिलेगी, ठीक है। जो KFC का रेस्टोरेंट वहाँ पे आपको नज़र आएगा, ठीक है। तो विद टाइम जो क्रिएटिव इंडिविजुअल्स होते हैं, हर कंपनी जो है वो एंटरप्रेन्योर स्टेज से स्टार्ट करती है। अगर उनको उनके लीडर जब वो कामयाब हो जाएं तो जनरली वो कलेक्टिविटी स्टेज और फिर फॉर्मलाइजेशन स्टेज से गुजरती हुई एलैबोरेशन की स्टेज पे पहुंच जाती है। और समटाइम्स बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो एंटरप्रेन्योर स्टेज से आगे नहीं चल सकती, वहाँ पे बहुत सारी कंपनीज जो है एंटरप्रेन्योर स्टेज पे ही ख़त्म हो जाती हैं, एंटरप्रेन्योर स्टेज से जो है आगे नहीं चल सकती, ठीक है। मे बी जो इंडिविजुअल होता है, जो लीडर होता है, उसके जहन में जो क्रिएटिव आइडिया होता है वो क्लिक नहीं करता जब वो मार्केट उसको एक्सेप्ट नहीं करती, ठीक है। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एंटरप्रेन्योर स्टेज से निकल के कलेक्टिविटी स्टेज पे पहुंच जाए तो फिर भी कलेक्टिविटी की स्टेज में भी जहां ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करना शुरू कर देती है, उसका साइज इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, तो वहाँ पे भी लीडरशिप की ज़रूरत पड़ती है। जो लीडर होता है उसी का मेन इम्पॉर्टेंट रोल होता है वो कि फ्यूचर की डायरेक्शंस वो क्या सेट करता है, ठीक है, कि फ्यूचर में कंपनी किस तरह ग्रो करेगी, जब फ्यूचर में कंपनी की नीड्स क्या है, मज़ीद और किन डिपार्टमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है स्टेज पे, ठीक है। तो दिस अगेन जो कलेक्टिविटी की स्टेज है इसमें लीडर का रोल, जो कंपनी के ओनर या मैनेजर्स का रोल, जहाँ टॉप मैनेजमेंट का रोल, इन पर्टिकुलरली जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं उनका रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। वो लोग ही ये डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर की डायरेक्शन क्या होगी और उन्हीं की ये जिम्मेदारी है कि वो क्लियर डायरेक्शंस प्रोवाइड करें। कलेक्टिविटी की स्टेज से जनरली ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो फॉर्मलाइजेशन की स्टेज पे पहुंचती हैं। अब फॉर्मलाइजेशन की स्टेज पे जनरली ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो एस्टेब्लिश हो चुकी होती हैं, ठीक है, और उनके प्रोडक्ट, उन्होंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी मार्केट में अब इंट्रोड्यूस करा चुके होते हैं और उन्हें बहुत सारी जो मार्केट सेगमेंट्स हैं वो कैप्चर कर चुके होते हैं, जो उनका मार्केट शेयर जो है वो इंक्रीज़ हो चुका होता है। यहाँ पे अब एक जो एंटरप्रेन्योर था, एक जो ओनर था, अब उसके बस की बात नहीं होती कि वो सारी कंपनी को सक्सेसफुली रन करे। तो यहाँ पे ओनर को फिर प्रोफेशनल मैनेजर्स की ज़रूरत पड़ती है,
ठीक है, और प्रोफेशनल डिपार्टमेंट्स को ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत पड़ती है। मे बी पहले अगर सिर्फ मार्केटिंग डिपार्टमेंट था तो अब शायद कस्टमर सर्विसेज डिपार्टमेंट और सेल्स को अलहदा करना पड़े, ठीक है, अकाउंटिंग और फाइनेंस के डिपार्टमेंट्स इंट्रोड्यूस करने पड़े, इंटरनल ऑडिट के डिपार्टमेंट्स इंट्रोड्यूस करने पड़े, कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट की एक्टिविटी भी स्टार्ट करनी पड़े। तो देखिए फॉर्मलाइजेशन की जो स्टेज है वहाँ पे जनरली अब जो टॉप मैनेजर्स हैं उनको डेलीगेट करनी पड़ती है अथॉरिटी टू अदर प्रोफेशनल मैनेजर, ताकि वो अप्रोप्रिएट डिसीजंस एट द राइट स्पॉट और द राइट टाइम ले सकें। और यहाँ पे बहुत सारे एडिशनल इंटरनल सिस्टम्स भी इंट्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि हमने कहा मे भी फाइनेंस का डिपार्टमेंट या अकाउंटिंग का डिपार्टमेंट की ज़रूरत पेश आती है, इंटरनल ऑडिट के डिपार्टमेंट की ज़रूरत पेश आती है, कस्टमर सर्विसेज के डिपार्टमेंट की ज़रूरत पेश आ सकती है, जहाँ किसी भी डिपेंडिंग अपॉन कि किस किस्म का बिजनेस है न्यू इंटरनल डिपार्टमेंट्स जो हैं वो इस्टेब्लिश किए जा सकते हैं। जो चौथी स्टेज है वो कहलाती है एलैबोरेशन स्टेज। अब देखिए एलैबोरेशन स्टेज जो है उसमें एक कंपनी फुली ग्रोन कंपनी बन चुकी होती है, एस्टैब्लिश्ड ब्रांड्स होते हैं उसके, और इट बिकम्स वन ऑफ अ गुड कंपनी विद अ रेपुटेशन इन द मार्केट, ठीक है। अब जनरली एलैबोरेशन की स्टेज पे अगेन कंपनीज जो हैं वो ब्यूरोक्रेसी का शिकार हो जाती हैं। अगेन क्लियरली डिफाइंड प्रोसीजर्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो इस्टेब्लिश हो चुके होते हैं, हाईली फॉर्मलाइज हो जाती हैं, हाईली सेंट्रलाइज हो जाती हैं। जनरली टॉप मैनेजर्स जो हैं वो अगेन हर चीज़ों को खुद डिसाइड करना चाहते हैं। तो जनरली हम कहते हैं कि एलैबोरेशन की स्टेज में रेड टेपिज्म आ जाता है ऑर्गेनाइजेशंस में, जहाँ जनरली दे बिकम सिंबल्स ऑफ रेड टेपिज्म। अब यहाँ पे देखिए ज़रूरत पेश आ सकती है एलैबोरेशन की स्टेज में। कुछ कंपनीज जो है उनकी एलैबोरेशन की स्टेज बहुत लंबी हो सकती है और वो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जो है मैच्योरिटी पे काम करती रहती हैं, लेकिन बहुत सारी कंपनीज को रीवाइटलाइज करना पड़ता है और जहाँ नीड फॉर रीवाइटलाइजेशन क्रिएट होती है। अब रीवाइटलाइजेशन जो है बहुत सारी कंपनीज क्या करती हैं कि बहुत सारे जो उनके डाइवर्स बिजनेसेस होते हैं, जब वो बिजनेसेस जो कि लॉस में जा रहते हैं या जो कि लॉस में जा रहे होते हैं उनको बंद कर दिया जाता है, जहाँ उनको क्लोज डाउन कर दिया जाता है, ठीक है। इसी तरह वो प्रोडक्ट्स जो कि मज़ीद प्रॉफिटेबल नहीं होते उनको भी प्रोडक्ट्स को क्लोज कर दिया जाता है, ठीक है। जब प्रोडक्ट्स को मज़ीद उनकी मैन्युफैक्चरिंग या मार्केटिंग नहीं की जाती और मे बी R&D पे ज़्यादा एम्फेसिस किया जाता है, नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस या नई मार्केट्स कैप्चर करने पे इंट्रोड्यूस किया जाता है। यहाँ पे आके इस स्टेज पे अगेन जो बहुत बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस जो कि एंटरप्रेन्योर स्टेज से गुजरते हुए एलैबोरेशन स्टेज पे जब पहुँचती हैं तो दे बिकम वेरी बिग कॉर्पोरेशंस। तो ये बिग कॉर्पोरेशंस अगेन दे स्टार्ट थिंक स्मॉल, ठीक है, या अगेन थिंक स्मॉल शुरू कर देती हैं और अपने आप को डिफरेंट डिवीजन्स में प्रोडक्ट्स की बेस पे अपने आप को रीऑर्गेनाइज करती हैं और जनरली फ्रॉम अगेन दे ट्राई टू इंट्रोड्यूस टीम वर्किंग, ठीक है। और हम देखते हैं कि री एलैबोरेशन में जनरली जहाँ तो आप अपने आप को रिवाइव कर लेते हैं, रिवाइटलाइज कर लेते हैं, जहाँ मैच्योरिटी पे ही विद द सेम प्रोडक्ट्स आप चलते रहते हैं, जहाँ फिर आप डिक्लाइन की तरफ चले जाते हैं, जब कंपनी जो है वो डिक्लाइन की तरफ जाना शुरू हो जाती है। देखिए हमने क्या बात की, हमने कहा जी कि देखिए ये ऑर्गेनाइजेशन लाइफ साइकिल के पॉइंट ऑफ व्यू से जनरली 4 स्टेजेस होती हैं। हर कंपनी जो है वो एंटरप्रेन्योर स्टेज से शुरू करती है, देन इट गोज टुवर्ड्स द कलेक्टिविटी स्टेज, कलेक्टिविटी स्टेज से वो फॉर्मलाइजेशन की स्टेज पे जाती है एंड देन फाइनली एलैबोरेशन की स्टेज पे पहुंच जाती है, ठीक है। और एलैबोरेशन की स्टेज पे जब वो फॉर्मलाइज हो जाती है, जब फॉर्मलाइजेशन की स्टेज पे बहुत ज़्यादा रेड टेपिज्म इंट्रोड्यूस हो जाता है कंपनी के कल्चर में, ठीक है। फिर अगेन इनको रीवाइटलाइज करने की ज़रूरत पेश आती है एलैबोरेशन की स्टेज पे। तो बहुत सारी कंपनीज अगेन दे स्टार्ट थिंकिंग स्मॉल अगेन और अपने आप को प्रोडक्ट्स की बेस पे या मार्केट्स की बेस पे डिफरेंट डिवीजन्स में सब डिवाइड करती हैं, ठीक है। और उस टीम वर्क और ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर्स लेके आती हैं ताकि रीवाइटलाइज किया जा सके। तो इसके 3 ही रिजल्ट्स हो सकते हैं, जहाँ तो कंपनीज रीवाइटलाइज हो जाती हैं, जहाँ मैच्योरिटी पे सस्टेनेबल मैच्योरिटी पे चलती रहती हैं, या फिर डिक्लाइन की तरफ मूव कर जाती हैं, ठीक है। देखिए हम एक एग्जांपल लेते हैं और इस एग्जांपल की मदद से हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो स्टेज 1 से स्टेज 2 एंड देन स्टेज 3 पे कैसे जाती हैं। हम देखते हैं कि जी कि एक रिसर्चर था क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट में, जिसने कि एक डिवाइस क्रिएट किया
और उसने उस डिवाइस का नाम दिया ऑस्टरवेव पावर टेक्नोलॉजी, और ये कुछ उसने अप्रैल 2003 में किया। ठीक है, अप्रैल 2003 में उसने एक डिवाइस जो है वो अपने यूनिवर्सिटी की लैब में काम करते हुए उस रिसर्चर ने ईजाद किया है, और उसने उसको नाम दिया है ऑस्टरवेव पावर टेक्नोलॉजी। फरवरी 2005 में उसने एक कंपनी की बुनियाद रखी और उसने उस कंपनी को नाम दिया एक्वा मरीन पावर। एक्वा मरीन पावर जो है वो किस लिए एस्टेब्लिश की गई, ताकि वो इस ऑस्टरवेव पावर टेक्नोलॉजी को कमर्शलाइज किया जा सके। अक्टूबर 2007 में एक्वा मरीन पावर जो है वो एक ऑलरेडी एस्टेब्लिश कंपनी के साथ उसने जॉइंट वेंचर कर लिया, और वो एस्टेब्लिश कंपनी क्या थी, स्कॉटिश एंड सदर्न एनर्जी। ठीक है, उसने स्कॉटिश एंड सदर्न एनर्जी के साथ जॉइंट वेंचर किया ताकि एक्वा मरीन टेक्नोलॉजी को इफेक्टिवली या एफिशिएंटली मार्केट किया जा सके। अगस्त 2008 में अब कंपनी इस स्टेज पे पहुंच चुकी थी कि दे नीडेड प्रोफेशनल मैनेजर्स। एक्वा मरीन पावर अपॉइंट्स एन एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट टीम लेड बाय चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मार्टिन मैकडैम। ठीक है, अब यहाँ पे 2008 में कंपनी इस स्टेज पे पहुंच गई जब उनका प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो गया, और यहाँ पे उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब उनको प्रोफेशनल मैनेजर्स की ज़रूरत है। अगस्त 2010 में कंपनी के एम्प्लॉयज़ की तादाद कोई 100 के करीब पहुंच गई, और दे नीडेड नाउ डिफरेंट डिविजनल मैनेजर्स लाइक फॉर डिफरेंट इंजीनियरिंग फंक्शंस, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग एक्सेट्रा। इट स्टार्टेड टू बिकम अ फुल ग्रोन कंपनी। देखिए, आपने देखा होगा बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में इंक्यूबेशन सेंटर्स कायम किए जाते हैं। तो दिस इज़ जस्ट एन एग्जांपल फ्रॉम इंक्यूबेशन सेंटर्स। ठीक है, जहाँ पे वो इंक्यूबेशन सेंटर्स का क्या मतलब होता है कि अगर आपके पास इतने फाइनेंसेस नहीं है तो यूनिवर्सिटी आपको एक फिजिकल स्पेस प्रोवाइड करती है, आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, आपको एक ऑफिस प्रोवाइड करती है। वहाँ से आप अपने आइडिया को डेवलप कर सकते हैं, कुछ थोड़ी बहुत फाइनेंसिंग भी करती है आपके आइडियाज़ की, आपके प्रोडक्ट्स की, और वहाँ से आप अपना एज एंटरप्रेन्योर स्टार्ट लेते हैं। अगर आप उस एंटरप्रेन्योर स्टेज से निकल जाते हैं और आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस कामयाब साबित होती है, तो then generally you can leave that incubation center and start running the company as a full-fledged organization. अब देखिए, हमने बात की कि अब हम देखते हैं कि जनरली जो करेक्टरिस्टिक्स हैं इन डेवलपमेंट स्टेजेस के वो क्या हैं। तो अगर आप अपनी स्लाइड पे देखिए कि हम कौन कौन सी डेवलपमेंट स्टेजेस की बात की है, हमने एंटरप्रेन्योर स्टेज की बात की है, कलेक्टिविटी स्टेज की बात की है, फॉर्मलाइजेशन की, एलैबोरेशन की, और जनरली हम इनको इस तरह भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि एंटरप्रेन्योर स्टेज क्या है, दिस इज जनरली नॉन ब्यूरोक्रेटिक स्टेज। कलेक्टिविटी स्टेज क्या है, दिस इज बेसिकली प्री ब्यूरोक्रेटिक स्टेज। फॉर्मलाइजेशन इज अ ब्यूरोक्रेटिक स्टेज। एलैबोरेशन में अगेन वी गो फॉर डिसेंट्रलाइजेशन। देखिए, अगर हम स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एंटरप्रेन्योर स्टेज में जनरली इनफॉर्मल स्ट्रक्चर होता है और जनरली सब वन मैन शो या वन पर्सन शो। अब कलेक्टिविटी की स्टेज में मोस्टली इनफॉर्मल विद सम प्रोसीजर्स जनरली। देन एलैबोरेशन की स्टेज में यू गेट generally in formalization stage you get formal procedures. You start dividing your labor, or there is a division of labor, and you add new specialities. Then again elaboration की stage में you start focusing on teamwork within bureaucracy. Small company thinking पे आप focus करना शुरू कर देते हैं। Product और services के लिहाज से क्या differences हैं? Generally जो है वो entrepreneur stage में there is just a single product or service. एंटरप्रेन्योर स्टेज से अगर आप कलेक्टिविटी की स्टेज पे पहुंच जाते हैं तो यू स्टार्ट इंट्रोड्यूसिंग वन और मोर प्रोडक्ट्स, एक या दो प्रोडक्ट्स का इजाफा कर लेते हैं आप। अगर आप फॉर्मलाइजेशन की स्टेज पे पहुंच जाते हैं तो देन यू मे हैव अ लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। फाइनली एलैबोरेशन की स्टेज में यू मे हैव मल्टीपल लाइंस। ठीक है, रिवॉर्ड एंड कंट्रोल सिस्टम्स कैसे काम करते हैं। ठीक है, अगर हम रिवॉर्ड एंड कंट्रोल सिस्टम्स के लिहाज से बात करें तो एंटरप्रेन्योर स्टेज में जनरली
पर्सनल, जब पैटर्नलिस्टिक रिवॉर्ड्स होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव जहाँ लीडर ने देखा कि आप बड़ी मेहनत कर रहे हैं, आप रात देर तक बैठे काम कर रहे हैं, जब आपने अच्छी सेल्स की हैं, तो वो आपसे खुश होके पर्सनली आपको रिवॉर्ड दे देता है, ठीक है। जब वो आपसे खुश होके आपको शाबाश दे देता है, ठीक है। जनरली कलेक्टिविटी की स्टेज में अगेन पर्सनल रिवॉर्ड्स ही होते हैं, जरा एंटरप्रेन्योर ही की जजमेंट पे होते हैं कि रिवॉर्ड्स किस तरह दिए जाएं, लेकिन दे आर लिंक्ड टू सर्टेन कंट्रीब्यूशन टू द सक्सेस। फॉर्मलाइजेशन की स्टेज में इम्पर्सनल हो जाते हैं, रिवॉर्ड सिस्टम्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, ठीक है, फॉर्मलाइज प्रोसीजर्स एस्टेब्लिश कर दिए जाते हैं। अगेन एलैबोरेशन की स्टेज में एक्सटेंसिव रिवॉर्ड सिस्टम्स डिज़ाइन किए जाते हैं, टेलर टू प्रोडक्ट एंड डिपार्टमेंट नीड्स, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब हम क्या बात कर रहे हैं, देखिए वी आर टॉकिंग अबाउट कि जैसे जैसे डेवलपमेंट स्टेजेस पे एक ऑर्गेनाइजेशन जो है एंटरप्रेन्योरशिप से जो है वो एलैबोरेशन की तरफ मूव करती है, तो उसमें सर्टन चेंजेस क्या आ सकती हैं, या उसमें सर्टन चेंजेस किस किस्म की हो सकती हैं, ठीक है। अगर हम स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमने कहा जी कि एंटरप्रेन्योर स्टेज में बेसिकली इनफॉर्मल स्ट्रक्चर्स होते हैं, वन मैन शो होता है, ठीक है। अगर हम कलेक्टिविटी की स्टेज की बात करें तो हम कहते हैं मोस्टली इनफॉर्मल होते हैं, सम प्रोसीजर्स ज़रूर फॉलो किए जाना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। देन अगेन अगर हम उसको फॉर्मलाइजेशन की बात करें तो हमने कहा कि जी के स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर्मलाइजेशन में फॉर्मल स्ट्रक्चर्स इंट्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर हो जाती है और डिपार्टमेंट्स ऐड होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। एलैबोरेशन के स्टेज में अगेन दे स्टार्ट थिंकिंग के स्मॉल कंपनी थिंकिंग हावी हो जाती है, यू स्टार्ट अडॉप्टिंग ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर्स और यू स्टार्ट अडॉप्टिंग टीम वर्क still within the dominant bureaucratic setup of your main organization, ठीक है। प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिहाज से एंटरप्रेन्योर स्टेज में जनरली यू कम अप विद वन सिंगल प्रोडक्ट और सर्विस। अगर आप उस स्टेज से कामयाब हो जाते हैं तो आप एक दो प्रोडक्ट्स और इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कलेक्टिविटी की स्टेज पे, लेकिन अगर आप फॉर्मलाइजेशन की स्टेज तक पहुंच जाते हैं तो यू मे हैव नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। फॉर्मलाइजेशन से गुजर के अगर आप एलैबोरेशन की स्टेज पे पहुंच जाते हैं तो यू मे हैव लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स, जैसे आप देखते हैं यूनिलीवर है, प्रॉक्टर एंड गैमल है, नेस्ले है, तो दे हैव नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो कि उन्होंने मार्केट कर रहे हैं, ठीक है, जो कि वो कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। रिवॉर्ड एंड कंट्रोल, इंडिविजुअल की जजमेंट, ठीक है, इंडिविजुअल की जजमेंट एंटरप्रेन्योर जो है वो जज करता है कि उसको किसको क्या रिवॉर्ड देना है। अगेन कलेक्टिविटी की स्टेज में भी उसी की जजमेंट होती है, लेकिन एलैबोरेशन की स्टेज में कुछ फॉर्मलाइज प्रोसीजर्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं कि किन बेसिस पे रिवॉर्ड्स जो हैं वो एलोकेट किए जाएंगे। फाइनली अगर आप जो हैं वो एलैबोरेशन की स्टेज पे पहुंच जाते हैं तो एक्सटेंसिव सिस्टम्स डेवलप हो चुके हैं और हर डिपार्टमेंट और हर डिवीजन की नीड के मुताबिक रिवॉर्ड्स डिज़ाइन किए जाते हैं। देखिए इनोवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे, इनोवेशन अगर को एज अ करेक्टरिस्टिक हम देखना चाहें तो हम कहते हैं कि जी के एंटरप्रेन्योर स्टेज पे जनरली ओनर जो है या मैनेजर जो है उसकी क्रिएटिव थिंकिंग पे सब कुछ डिपेंड करता है। अगर आपके जहन में कोई क्रिएटिव आइडिया है, आपके जहन में कोई प्रोडक्ट है, लेट्स से आप फैशन इंडस्ट्री से हैं, आप अगर कोई बहुत आपके जहन में क्रिएटिव हैं, आप कोई बड़े अच्छे स्टाइल्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, तो ये सब आपकी इनोवेशन पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। कि आप वो मार्केट कैसे कैप्चर करते हैं, एक पर्टिकुलर निच या सेगमेंट ऑफ मार्केट कैसे कैप्चर करते हैं। देखिए जुनैद जमशेद के जहन में आइडिया था कि एक शलवार कमीज़ या कुर्ता कमीज़ जो है वो उसकी मार्केट पाकिस्तान में क्रिएट की जा सकती है, ठीक है। तो उसने अपने इस आइडिया पे काम किया। अब देखिए उसकी पाकिस्तान भर में, पाकिस्तान से बाहर भी उसकी शॉप्स हैं जहाँ उसकी ये वो अपनी ये शलवार कमीज़ के आइडिया या कुर्ता शलवार के आइडिया को आसानी से उसने एंटरप्रेन्योर स्टेज से एलैबोरेशन स्टेज पे मूव कर दिया है, ठीक है। एक तो उसका सेलिब्रिटी स्टेटस था, लेकिन अगेन ही हैड सम क्रिएटिव थिंकिंग जिसकी बेसिस पे उसने ये आइडिया, एक बिजनेस आइडिया जनरेट किया, ठीक है। जब उसने एक बिजनेस आइडिया को आसानी से इम्प्लीमेंट किया। अगर आप एंटरप्रेन्योर स्टेज से जो है वो कलेक्टिविटी स्टेज पे मूव करते हैं तो उसमें जो है आपके साथ जो कुछ और एम्प्लॉयज़, आपके मैनेजर्स, उनकी इनोवेटिव आइडियाज़, उनकी क्रिएटिव थिंकिंग भी मैटर करती है। जनरली फॉर्मलाइजेशन की स्टेज पे यू मे हैव अ सेपरेट इनोवेटिव ग्रुप जिनका काम ये है कि वो क्रिएटिव ग्रुप होता है, वो थिंक करते हैं
कि चीज़ों को और क्या प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं, मार्केट को स्टडी करते हैं, ठीक है, और क्या सर्विसेज इस पर्टिकुलर मार्केट में इंट्रोड्यूस की जा सकती हैं। लेकिन एलैबोरेशन की स्टेज में जनरली इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स या रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स इस्टेब्लिश कर देती हैं कंपनीज, ठीक है। गोल, अगर हम गोल की बात करें तो गोल के पॉइंट ऑफ व्यू से जनरली एंटरप्रेन्योर स्टेज में आपका सबसे बड़ा इशू सर्वाइवल होता है, ठीक है। आपने मे बी किसी तरह फाइनेंसेस अरेंज किए होते हैं, मे बी आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट होती है, मे बी अपने अपने दोस्तों से पैसे गैदर किए होते हैं, मे बी किसी बैंक से आपने लोन लिया होता है। तो वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आप सर्वाइव करना चाहते हैं उस मार्केट में, आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस इस स्टेज से आसानी से गुजर जाए। जैसे आप कलेक्टिविटी स्टेज पे पहुंचते हैं तो देन योर बिजनेस स्टार्ट्स ग्रोइंग, और ग्रोथ ही वहाँ पे आपका मेन ऑब्जेक्टिव होती है। आप फॉर्मलाइजेशन की स्टेज में जनरली आपकी कंपनी स्टेबल हो चुकी होती है एंड यू स्टार्ट लुकिंग टुवर्ड्स हाउ टू एक्सपैंड योर मार्केट शेयर। अगेन एलैबोरेशन की स्टेज में यू मे हैव good reputation in the market, you want to enhance it further, your brands become popular, and generally you move towards maturity, or you want to revitalize your company, or if you're not able to establish a good reputation, or if your products are no more wanted by the market, you may reach a stage where you face decline. Top management style, अगर हम टॉप मैनेजमेंट स्टाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो देखिए कि जो एंटरप्रेन्योर स्टेज है उसमें इंडिविजुअलिस्टिक या एंटरप्रेन्योरियल स्टाइल होता है। जो कलेक्टिविटी होते हैं उसमें जनरली लीडर करिज्मेटिक है, गिव सक्सेसफुली डायरेक्शंस दे सकता है, अगर वो अपने फॉलोअर्स क्रिएट कर सकता है तो आप फॉर्मलाइजेशन की स्टेज में आसानी से मूव कर सकते हैं। लेकिन फॉर्मलाइजेशन की स्टेज में इट्स नो लॉन्गर पॉसिबल फॉर द लीडर टू इफेक्टिवली मैनेज द होल कंपनी, सो ही जनरली डेलीगेट्स द कंट्रोल टू अदर टॉप मैनेजर्स। अगेन एलैबोरेशन की स्टेज में देयर इज एन अप्रोच टुवर्ड्स पार्टिसिपेशन और टीम वर्क। Let's take an example of a very famous pharmaceutical company and let's see how it has changed in response to its change in its organization life cycle. So the example we are going to take is from GlaxoSmithKline. You are invited to visit Financial Times and go to their website and try to read some articles on GSK. So the question arises, where would you like to place GSK on organization life cycle? How would you describe GSK's reward and control systems? What routines can you identify in the article? How are these related to its objectives? So from the organization life cycle point of view, we can see that in general GSK is moving towards the elaboration stage or is in the elaboration stage, and they are now trying to emphasize decentralized teamwork. They are now trying to revitalize their company by establishing small semi-autonomous businesses within an entrepreneurial culture more typical of small biotechnology company than a drug multinational, because the reference point for the creation in early 2001 of 7 centers of excellence for drug discovery, CEDs, in Europe and the US, of which Stevenage houses 2. देखिए GSK ने now it has become one of the very biggest drug manufacturers in the world. जब इतनी बड़ी कंपनी होगी तो they thought about कि they need to organize the certain organization processes, reorganize them and taking a small company thinking. ठीक है, क्योंकि कहा जी कि स्मॉल कंपनी थिंकिंग के पर्सपेक्टिव से हमें, अगर हमने ड्रग जो इनोवेशन है ड्रग्स में, जो हमने मेडिकल टेक्नोलॉजी में नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करने हैं, नई ड्रग्स इंट्रोड्यूस करनी है, तो वी हैव टू थिंक स्मॉल एंड वी हैव टू रीऑर्गेनाइज आवर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसलिए उन्होंने 7 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस फॉर ड्रग डिस्कवरी CEDs इन यूरोप एंड US एस्टेब्लिश किए। उनकी स्ट्रैटेजी क्या थी? द हार्ट ऑफ दिस स्ट्रैटेजी वाज द क्रिएशन ऑफ फुली एम्पावर्ड multidisciplinary teams of no more than 300 people, the size of many of the successful biotech companies with which GSK and rivals have signed alliances. I only rigidly control the head count, he says. 300 are human size where people can hold each other accountable.
देखिए उनकी स्ट्रैटेजी क्या थी, वाई दे एस्टेब्लिश्ड 7 डिफरेंट ड्रग सेंटर्स और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ड्रग डिस्कवरी। उन्होंने कहा जी यहाँ पे फुली एम्पावर्ड मल्टी डिसिप्लिनरी टीम्स काम करेंगी और यहाँ पे इन प्लांट्स का साइज जो है 300 से ज़्यादा नहीं होगा। 300 से ज़्यादा क्यों नहीं होगा, ताकि लोग एक दूसरे को बेहतर तौर पे जान सकें, बेहतर तौर पे टीम वर्क में काम कर सकें और दे कैन हेल्ड वन अनदर रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल फॉर देयर परफॉर्मेंस। इसका रिजल्ट क्या हुआ, या इसका GSK को फ़ायदा क्या हुआ? CEDs have made a big difference. The first has been the ability to stop and start research projects more quickly than in the past, saving substantial research cost. Before, we could be stuck for years with a project that was not viable because the visibility was not there. The layers of management between me, the leadership team and the bench scientists have been compressed. A second change has been tighter integration of chemistry and biology, creating an approach dubbed medicinal chemistry. देखिए वहाँ पर क्या किया, CEDs कैसे डिफरेंट हैं, ठीक है। CEDs इस तरह डिफरेंट हैं कि अब वो लेयर्स ऑफ मैनेजमेंट का सामना बाकी नहीं है। जब उनको जो उनका प्रीवियस स्ट्रक्चर था, दे हैव टू, इफ दे वांटेड कि एक प्रोजेक्ट पे काम किया जाए, एक ड्रग पे काम किया जाए, तो दे हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट। और उसमें लेयर्स इतनी थी कि इट टुक वेरी लॉन्ग टू टेक permission to start a project. Again, if they wanted to stop a project, it would be a long procedure before they could finally end that project. ठीक है, देखिए वो layers of management compress की गई। और सेकंड उसमें फ़ायदा क्या हुआ कि केमिस्ट्री और बियोलॉजीज़ के जो डिफरेंट साइंटिस्ट थे उनको मौका मिला कि वो एक दूसरे के करीब आके टाइटली इंटीग्रेटेड मैनर में काम करें, ठीक है। और उन्होंने कहा इस अप्रोच को उन्होंने क्या नाम दिया, मेडिसिनल केमिस्ट्री। In the same way, the CEDs cooperates closely with other parts of GSK. That has led to early cooperation as specialists from both sides discuss how our ideas developed in the laboratory are practical for large-scale manufacture. देखिए again, ये जो CEDs create किए गए थे, ये more effectively with the main GSK जो है, जो GSK headquarter था, जो GSK की जो main company है, उनके साथ भी मोर इफेक्टिवली लिंक्ड थे, ठीक है। उनके साथ भी ज़्यादा बेहतर तौर पे इनकी कोऑर्डिनेशन थी, ताकि जल्दी ये डिसाइड किया जा सके कि किस डिस्कवरी को कमर्शलाइज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, ठीक है। और ईच CED हैड इट्स ओन फाइनेंस डायरेक्टर, ताकि फाइनेंसेस के लिए मंजूरी जो है वो मेन कंपनी से ना लेनी पड़े। देखिए अगेन ये ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर की तरफ मूव कर रही है। अगर आप थोड़ा सा गौर करें कि विद इन दी ब्रॉडर GSK स्ट्रक्चर जो है, जो ब्रॉडर GSK का स्ट्रक्चर है, जो GSK जो है वो उसका एक ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है, जो भी उसका मेन स्ट्रक्चर है, जो कल्चर है, उसी कल्चर के अंदर उन्होंने कुछ सेंटर्स डेवलप किए हैं जहाँ पे वो चाहते हैं कि ड्रग्स पे जल्दी से काम किया जा सके, जहाँ ड्रग डिस्कवरी की स्पीड को इंक्रीज किया जा सके। अब देखिए ये क्यों उन्होंने क्यों ये सेंटर्स कायम किए, ताकि वो वहाँ पे टीम वर्क हो, वहाँ पे ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर्स के तहत काम किया जा सके और बेहतर तौर पे इंटीग्रेटेड मैनर में ड्रग डिस्कवरी पॉसिबल हो। GSK देखिए जब उन्होंने ये सब कुछ किया है, तो दिस मीन्स दे हैव टू चेंज द स्ट्रक्चर टू, दे हैव टू चेंज द HR प्रैक्टिसेस टू, particularly with regard to pay and compensation of these people who are working in the new setup. And they did some extensive, presumably tailored, hard to say, उन्होंने कुछ extensive restructuring की होगी। A final factor within the CED's performance-linked remuneration, which accounts for about 20% of the scientist's pay. But as in any company, Mr. Rapport concedes that devising individual targets for team members is difficult. देखिए वहाँ पे उन्होंने अब जो साइंटिस्ट थे उनकी 20% रेमुनेशन जो थी वो लिंक कर दी उनकी परफॉर्मेंस से, कि अगर वो नई ड्रग्स डिस्कवर करेंगे तो दे वुड गेट सम एक्स्ट्रा कमीशंस और बोनसेस और मे बी लॉयल्टी फीस। एंड देन दे इंट्रोड्यूस्ड सोशल कंट्रोल, जब पीयर प्रेशर के तहत वहाँ पे काम हो रहा था, जब वहाँ पे जो कंट्रोल का मैकेनिज्म क्या था, दैट वाज पीयर प्रेशर। अब GSK की रूटीन्स में क्या चेंजेस आई, जब रूटीन्स क्या थे, like now over here they used to have multidisciplinary teams, people from finance, manufacturing, chemists and biologists. They came together to work as a part of team. They established nodes on each floor where staff sit and are encouraged to sip free coffee while exchanging ideas.
उन्होंने हर फ्लोर पे कुछ स्पेशल जगह मखसूस की जिनको दे कॉल देम नोड्स, जहाँ पे स्टाफ जो है वो दे यूज्ड टू सिट टुगेदर एंड दे used to sip coffee together. Within the idea was okay, if they are going to sit together, they are going to discuss different things, different ideas, and that's going to increase the collaboration and teamwork. This was all done with an aim to increase the speed of drug development. अब देखिए हमने एक जो एग्जाम्पल ली है वो GSK की एग्जाम्पल ली है, और इस एग्जाम्पल का मकसद क्या है? द एम ऑफ द एग्जाम्पल इज टू सी के हाउ दे हैव ट्राई टू रिवाइटलाइज देयर सम इम्पोर्टेंट फंक्शंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हमें कहा जी GSK जो है दैट इज बेसिकली अ ड्रग मैन्युफैक्चरर और वन ऑफ द वेरी बिगेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनीज इन द वर्ल्ड, और उनका एम क्या है कि दे वांटेड टू इंट्रोड्यूस न्यू इफेक्टिव मेडिसिन्स. It all depends upon how the scientists work in the labs. देखिए, this is all being done with an effort to increase the speed of the drug discovery, because this is what their business is. This is what their aim is, to introduce new and effective and innovative drugs. ठीक है? अब देखिए उन्होंने इसके लिए क्या किया कि उन्होंने think small जो है वो फिलॉसफी अपनाई और कुछ सेंटर्स थ्रू आउट यूरोप एंड US क्रिएट किए, जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो एक सेंटर में वर्क करते थे वो 300 के करीब थे. इसका उनको फ़ायदा क्या हुआ कि दे क्रिएटेड स्मॉल मल्टी डिसिप्लिनरी टीम्स, जिनमें के एक सोशल कंट्रोल क्रिएट किया जा सकता था, और वहाँ पे उनकी परफॉर्मेंस को या उनकी पे को या उनकी कंपनसेशन को परफॉर्मेंस से लिंक किया गया, और ये एक चेंज उन्होंने इंट्रोड्यूस किया. ठीक है, दिस इज़ वे हाउ दे हैव चेंज देयर रूटीन्स. दिस इज एन एग्जांपल for you to understand how GSK has changed its routines, how GSK has changed its pay and compensation practices, and how it has changed the environment so that the speed of the drug discovery can be increased, or the main objective or mission of the organization can be achieved. देखिए, अब अगेन हम थोड़ी सी बात करते हैं कि जी के क्या और characteristics हैं with respect to 5 phases of organization development. Number 1 stage, let's say birth. Number 2 stage, growth. Number 3 maturity. अगर हम birth की बात करें तो we say कि generally birth में the focus is on frequent innovation. You try to come up with new innovations so that you can capture different unfilled niches in the market. ठीक है, generally birth में middlemen का रोल भी बड़ा important होता है. If there are people willing to distribute your products, or if people are willing to sell your products, you can easily become successful. There is an emphasis on vertical integration, meaning you try to capture your suppliers, or you try to capture complex supply line, or you try to acquire your distribution networks. ठीक है, you are still a very small company. ठीक है, at the time in the birth का जो stage है, जब birth की जो phase है, उसमें generally you are a small company, maybe 50 or 60 employees. One or few owners, they may be just a single owner company, or maybe few people, they own the company as a partners. You have a simple centralized framework, or you have a centralized structure to manage your company. You are willing to take risk. Generally आपका attitude क्या है? You are willing to introduce new products, you are willing to take risk. Growth की stage में generally you broaden your product lines, there is incremental innovation, you focus on market segmentation, you focus on lobbying. Incremental innovations क्या है? You try to introduce certain changes. Maybe you try to change the design of your products or services, you try to change the colors, or you try to change the styles. Just incremental innovations. ठीक है, market segmentation, अब आप clear cut, you try to define कि what are your markets, or what are your markets you are trying to sell your products or services. Related acquisitions, maybe if you try, or if you want, you try to acquire certain other businesses which are helpful in growing your own main core business. ठीक है, your size increases, your ownership increases, maybe certain other people join you as partners, or maybe you start to think about going public. Generally now you have a functional structure, your staff number increases, you are now less willing to take risk. Now in the third stage, in the maturity, what happens in the maturity? There are few changes. Generally your
product lines remain the same, but you may change, you may introduce few changes, you may introduce new products, or you may introduce new services. Generally now you follow the competition. If your competitors, they introduce new products, then it becomes binding on you to also introduce new products in the market. If your competitors, they introduce new services, then then you also feel that you need to introduce new products or services. Your markets become very broader now. You capture new markets. You have fully mastered, or you have fully captured certain other segments of the market. So now you are serving very broader markets. Generally, you become very large organization by now. You have enlarged ownership. Maybe you are now a public limited company, or even if you are a private company, you may have number of owners who are partners. You have diverse board now. Maybe if you have gone public, or even if you are a private limited company, you have different people from different with different skills and expertise. Maybe you have now representatives from the labor, or you may have employee representatives as member of board of directors, or your board of directors basically expands. You may still have functional structure. You now have professional managers working for you. There's less of delegation. You try to take all your decisions yourself, and now you are much more efficiency focused. You are more conservative in taking decisions. What happens in revival stage, or what happens in the decline stage now? Now in the revival, if you want, maybe now you have moved towards your revival stage. So what happens in the revival now? You try to introduce new innovations. You try to diversify your businesses. You try to find new markets. Now you may have many owners. Your structure becomes divisional now. Maybe you still have centralized strategy for your main corporation. You may have centralized strategy with decentralized operations for each divisions. So how your structure is changing? Still you may have centralized strategy, like the head office or the top management of the corporation may decide what the business strategy is, but at the same time you may have decentralized operations for each division or for each business unit. You are much more bothered about environmental analysis, and you do a lot of environmental scanning. You are willing to take some risk, or you are risk taker now again to introduce your innovations to the market. Now finally, in the decline stage, you cut prices to stay competitive, or you cut prices to increase your market share. Your products are now basically outdated. People do not want them anymore. So you have to cut your prices because they're not really wanted by the market. Your market shares start shrinking now. Generally, you are confused now. You don't have any strategy what to do. Many people leave your organization, or many owners, they sell their shares or they leave your organization. So the ownership is now restricted to few people only. Again, you try to create a simple structure which is highly centralized, because everything has to pass through you. You are the one who's now taking all the decisions, or you are the person who is the main decision maker now. You're not bothered much about the environmental changes. You do little or no environmental analysis, or you do little scanning. You depict extreme conservatism. You are very much shy to take decisions. You don't take any risk. You are exceedingly becoming conservative in your decisions. There is no innovation. You don't plan to introduce any new product or services. You try to averse risk. You don't take any risk. So naturally, you're not willing to introduce new products or services for that matter. Now there are certain problems of the decline stage, because you have reached the decline now, so you are facing certain problems too, and there can be certain remedies if you want to move back from decline to revival. Generally, the problem is that you are blinded to new and good information. The remedy is try to find good information, try to do some market analysis, and try to find some products which may increase your market share in action. Generally, now you're not willing to take any action to save the company, or you're not willing to introduce any products, introduce new services, or enter new markets. So the remedy can be diagnose your market and try to implement the change. Faulty action. Even if you take some action, that is not effective.
So correct your mistakes and maintain commitment. Crisis, effective reorganization. If your organization is facing crisis with regard to its functioning, you can try to reorganize it. Lastly, last stage is dissolution, and there's no remedy for that. If your company finishes or if it's dissolved, then there's no remedy. Actually, your company basically finishes then. Corporate turnaround. If you want to, now we want to talk about corporate turnaround and phases in revitalization in particular. If you're facing the crisis, you try to retrenchment and cost cutting. This is a reactive phase. You try to cut your costs. You try to retrench, like you try to you try to give up certain products, or you try to give up certain markets which you feel are not profitable enough. Reinvestment, focusing on core skills, investing in them for future. Now you refocus on your employees' core skills and you invest on them for the future. Rebuilding, reshaping the organization around new goals and skills for the future. So you have revitalized it, you have established new goals and missions. So what your aim is now to reshape your organization so as to achieve your future goals and missions. What's the role of the leadership in corporate turnaround situations? Generally, the leaders are responsible to provide a new vision. For example, we have already talked about like Xerox. If you remember, we took an example of Xerox that in early 1980s, Xerox were facing decline, basically due to the reason that its patents had expired and the Japanese and the Korean companies were marketing far more effective and cheap photocopying equipment. Now at that time, a veteran employee of Xerox was appointed as chief executive officer. So she provided a new vision and she wrote a fake article in Financial Times indicating or citing that the company is pretty soon the company is going to introduce very innovative products in the market and is going to revive itself. Now at that moment she had no idea what innovative products she could introduce in the market or how she's going to revive Xerox, but this was her vision. So by giving a false hope, and in the meantime by working very hard, by revitalizing the organization, she was able to provide a new vision to the company. Mobilizing commitment, you can motivate your employees, you can motivate, you can buck them up, you can increase their morale, and by this we mean you can mobilize a commitment. You can ask them to work hard, to focus on change, to focus on new technologies so that the commitment increases. You need to now change your routines and structures to support the new strategy. If you have come up or if you have been able to develop a new strategy, now your main aim is to change your routines and structures so that you can implement your new strategy effectively. Now we just take another example of corporate turnarounds, and this example is from Fiat, Marchionne's Gamble and One Way to Mobilize Commitment. What's the heading? The heading is Marchionne is basically CEO of Fiat, and he take an example to mobilize commitment of his employees. Now let's see what the example is. You can read about it in Financial Times too by following the link. But let's see what the example is and we try to understand how he revitalized Fiat. The reason for the union anger was Mr. Marchionne, CEO of Fiat and Chrysler, great gamble. In a last-ditch attempt to fix Fiat loss-making Italian manufacturing base, he is promising to invest 20 billion euros, 27 billion US dollars, to double the country vehicle production by 2014. But it comes at a price. In return, Italian workers, who are among the world's most protected, must adopt US-style flexible contracts. If they refused, Mr. Marchionne will pull Italy's biggest private employer out of the country altogether. Industrial jobs, seen as the birthright in Fiat's home market, could go to low-cost sites in Poland, Serbia, where Fiat owns the vast former Zastava plant that once made the cheap Yogo car, or elsewhere. देखिए यहाँ पे मिस्टर
मार्चोनी जो हैं उन्होंने एक गैम्बल किया, उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए या उनकी कमिटमेंट को इंक्रीज़ करने के लिए और उनको ज़्यादा चेंज लाने के लिए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा जी कि आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो मैं इटली का प्लांट बंद कर देता हूँ और मेरी सारी मशीन्स और इक्विपमेंट जो है वो ज़ेस्टेवा प्लांट जो है उनका, जो कि पोलैंड में था, सर्बिया में और पोलैंड में, वहाँ पे मैं सारी मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट कर देता हूँ और आप सब जो है आप अपनी जॉब्स लूज़ कर जाएंगे। मैं समझता हूँ कि पोलैंड में या सर्बिया में मैं चीप कार्स बेहतर तौर पे मैन्युफैक्चर कर सकता हूँ। तो दो ऑप्शंस हैं आपके पास, या तो मैं री इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, लेकिन उसके मुझे आपसे क्या प्रॉमिस चाहिए कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन हासिल है। यू नीड टू अडॉप्ट द यूएस स्टाइल फ्लेक्सिबल कॉन्ट्रैक्ट्स। या तो मेरी बात माने, मैं आपके कॉन्ट्रैक्ट्स रीडिफाइन करना चाहता हूँ, ठीक है, मैं चेंजेस लेके आना चाहता हूँ आपके कॉन्ट्रैक्ट्स में। जनरली यूएस स्टाइल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी गारंटीड नहीं है। अगर आपकी परफॉर्मेंस ठीक है तो यू कैन एक्सपेक्ट टू वर्क फॉर अ कंपनी फॉर अ लॉन्ग टाइम, but if your performance is not up to mark, there is no guarantee that the company is not going to kick you out or is not going to downsize. अब देखिए उन्होंने ये गैम्बल किया, उन्होंने कहा जी या तो आप मेरी बात मान लें, मैं आपको रीऑर्गेनाइज करना चाहता हूँ, या फिर मैं मज़ीद फर्दर इन्वेस्टमेंट जो है इटालियन प्लांट में नहीं कर सकता और मुझे सब कुछ अपना इक्विपमेंट और अपना प्लांट जो है वो पोलैंड या सर्बिया मूव करना पड़ेगा, जहाँ पे मैं समझता हूँ कि मैं बेहतर तौर पे चीप कार्स मैन्युफैक्चर कर सकता हूँ। Other ways to prevent corporate decline. Some of the other ways can be, you can acquire emerging companies, but this is potentially risky. You can acquire some successful companies, but it may be risky. Maybe you are not able to sustain it, or maybe you are not able to, really understand the working of the emerging companies. Diversify into unrelated areas. For example, many companies, when they are facing decline, they go to certain other business areas where the profit margins are still healthy. Maybe, for example, maybe let's say people, if they think that telecom sector in Pakistan has huge potential, maybe many people who have nothing to do with telecom business or who are not basically mobile service providers, they may enter the business. For example, maybe Nortel decides that it needs to, establish a telecom company in Pakistan just to take the opportunity and to make money or to make fast money or to grow quickly. Radically alter the focus of the company. You may think that you need to change your strategic objectives or you need to change your mission and goals. Establish joint ventures, strategic alliances to learn. You can form some joint venture strategic alliance with a successful company in order to learn from them how they are doing the businesses. The aim is to learn and to implement that change in your own organization. Requirements for learning from a joint venture and alliances. There are certain conditions when you will be able to benefit from if you form certain joint ventures. There are certain conditions, only then you will be able to benefit from a joint venture or alliance. Recognition of the value of joint venture as a mechanism of learning. Willingness to collaborate openly whilst being aware of no-go areas. Making learning an explicit goal. Focus on long-term learning, not short-term outputs. Like if you want to form a joint venture in order to learn from a successful company, you must first of all recognize that you're taking this joint venture with an aim to learn from that successful company. Both of you must be able to cooperate openly, and you must be aware where your partner or your joint venture partner may not be able to share its information with you, and what are those certain areas. Your goal should be to learn, and your focus should be long-term, not short-term, because generally in a 6 months or 1 year time you can learn nothing from another company. You need some time to learn from that company, and to not only to learn but to implement that learning in your own organization. It all depends upon the capacity of your organization to learn. It depends, are you able to transfer that knowledge? Would your employees be able to absorb that knowledge? So it generally matters, or it generally depends upon the absorptive capacity of the firm, and your previous learning experience also matters. If on previous occasions you have been successful, you may be willing to
form certain joint ventures. So what are the conclusions of the lecture today? So our main conclusions are there are general patterns to the ways in which organization structure changes as firm grows. These are not, however, set in stone. There are several ways in which companies can try to fight off decline and dissolution. These may be easier to achieve in theory than in practice. देखिए, what are our conclusions today? हमने कहा जी कि एक जो मेन चीज़ आज हमने सीखी है, जब वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव्स जो आज हमने अचीव किया है, वो क्या है कि हम देखा कि कुछ सर्टन एक पैटर्न्स हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि ऑर्गेनाइजेशंस को जिनका ध्यान रखना पड़ता है जबकि वो ग्रो कर रही होती। हाउएवर ये कोई सेट स्टेजेस नहीं है। एक ऑर्गेनाइजेशन एक आध स्टेज ओवरलैप भी कर सकती है, ठीक है, मे बी वो एंटरप्रेन्योर स्टेज से क्विकली एलैबोरेशन स्टेज पे मूव कर सकती है और कलेक्टिविटीज की स्टेज स्किप हो सकती है। देयर आर मैनी वेज जो कंपनीज कोशिश करती हैं कि वो डिक्लाइन या डेसोल्यूशन की तरफ ना जाएं, लेकिन इट्स ईजियर सेड इन थ्योरी देन एक्चुअली डन, ठीक है। थ्योरी में तो इट्स वेरी इजी टू से कि ये डिक्लाइन को इस तरह आप अवॉइड कर सकते हैं, या आप डिक्लाइन को अवॉइड करने के लिए इस किस्म की स्ट्रैटेजीज अपना सकते हैं, लेकिन इट्स ईजियर सेड देन डन। इन पर्टिकुलर हमने देखा है कि जी के जो आप डिक्लाइन से अगर बचना चाहते हैं तो मे बी आप जो हैं आपको जो लीडर्स हैं उनको नया विजन देना पड़ता है। दे नीड टू मोबिलाइज द कमिटमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज, दे नीड टू चेंज द रूटीन स्ट्रक्चर्स ऑफ द वे द प्रेजेंट रूटीन्स एंड स्ट्रक्चर्स। For that, they may have to form joint ventures or alliances with other successful companies in order to learn from those companies. But learning is not a simple task. If you don't have absorptive capacity, or if you don't have the ability to transfer that learning and implement it in your own organization, then it will not be of any use to you, or the purpose of the joint venture or alliance would not be of any fruit to you. तो जनरली आज हमने क्या देखा कि हमने कहा जी कि 5 स्टेजेस हैं ऑर्गेनाइजेशन की। जनरली एक एंटरप्रेन्योर स्टेज से ऑर्गेनाइजेशन कलेक्टिविटी की स्टेज पे जाती है, कलेक्टिविटी की स्टेज से एलैबोरेशन की स्टेज पे जाती है, और फिर जनरली जो है वो कलेक्टिविटी की स्टेज से ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फॉर्मलाइजेशन की स्टेज पे आती है, फॉर्मलाइजेशन की स्टेज पे आती है, और फिर फॉर्मलाइजेशन की स्टेज से एलैबोरेशन की स्टेज पे जाती है। जनरली हमने कहा जी बर्थ, ग्रोथ, मैच्योरिटी और जो है रिवाइवल एंड डिक्लाइन की स्टेजेस हैं 5। अब बर्थ की हमने कहा जी कि इन सब स्टेजेस की कुछ अपने करेक्टरिस्टिक्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बर्थ की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमने कहा कि बर्थ में फ्रीक्वेंट इनोवेशन पे जोर होता है, जबकि ग्रोथ में ब्रॉड हो जाती हैं आपकी प्रोडक्ट लाइंस, और मैच्योरिटी में देयर जनरली फ्यू चेंजेस। अनफिल्ड निचेस बर्थ में यू ट्राई टू फाइंड न्यू सेगमेंट्स, आप समझते हैं जहाँ पे आप उन सेगमेंट्स को आसानी से मार्केट कर सकते हैं, आप वो सेगमेंट्स ढूंढने की कोशिश करते हैं। ग्रोथ में इंक्रीमेंटल इनोवेशन होती है। जनरली मैच्योरिटी में जो जस्ट फॉलो योर कंपटीशन, अगर कंपटीशन न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इंट्रोड्यूस करते हैं तो आप भी कोशिश करते हैं कि न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज उनके मुकाबले में इंट्रोड्यूस की जाएं। बर्थ में मिडल मैन की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। अगर डिस्ट्रीब्यूटर्स या सप्लायर्स जो हैं वो आपके साथ काम ना करना चाहें तो दे मे मेक योर लाइफ वेरी हार्ड। ग्रोथ में मार्केट सेगमेंटेशन पे बहुत एम्फेसिस होता है। मैच्योरिटी में यू हैव एस्टैब्लिश्ड मार्केट्स एंड दे आर वेरी ब्रॉड नाउ। इसी तरह आप देखें कि बर्थ में जनरली जो साइज इज़ वेरी स्मॉल, ग्रोथ में आप ग्रो करते हैं, एक्विजिशंस भी करते हैं, जनरली मैच्योरिटी तक यू बिकम अ वेरी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। बर्थ में यू मे हैव one or few owners, the ownership increases with time, and generally by the time you are mature enough or you reach the maturity, you may have enlarged ownership. Many new partners may join you, or you may go public and becomes a public organization. Generally birth में it's a very simple centralized structure. Growth में it's still functional structure. Maturity में it becomes functional structure with the introduction of salaried managers, and you introduce you delegate the authorities, but the delegation is not that extensive. Risk taking के point of view से birth में you're a high risk taker, ये risk taking growth में कम हो जाती है।
maturity में you are too conservative, ठीक है. इस तरह revival और decline के point of view से क्या differences हैं. Revival में generally again your focus is on innovations, कि how to introduce new products, ठीक है, how to compete or capture new markets, ठीक है. Decline में उसके against basically you try to cut the prices ताकि कम कीमत पे लोग आपके प्रोडक्ट को अट्रैक्टिव समझें और ख़रीदने को तैयार हों, ठीक है. फॉर एग्जांपल अब देखिए ब्लैकबेरी जो है वो अपने टैबलेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात करें, जहाँ मोबाइल फ़ोन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो वंस अपॉन अ टाइम जो था जब ब्लैकबेरी की टैबलेट्स थे वो वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है. उनके मोबाइल फ़ोन्स थे वर ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव. यू कैन गूगल इट एंड सी द चेंजेस इन प्राइस, ठीक है. आप देखिए कि अब जो है ब्लैकबेरी जो है उसने एक्सटेंसिवली कट की हैं अपनी प्राइसेस टैबलेट्स की और मोबाइल फ़ोन्स की, ताकि एटलीस्ट उसकी कोई ना कुछ सेल तो हो, ठीक है. डाइवर्सिफिकेशन, आप नए बिजनेस रिवाइवल में यू ट्राई टू एंटर न्यू प्रोडक्ट्स न्यू मार्केट्स, जबकि डिक्लाइन में जनरली योर प्रोडक्ट्स आर आउटडेटेड, जनरली नो वन वांट्स देम, ठीक है. यहाँ पे रिवाइवल में यू वांट न्यू मार्केट्स, स्टिल यू हैव मैनी ओनर्स, you go for divisional structures based on products or markets, still you have, as a major corporation, you have centralized strategy, but still your business units, they may have decentralized operation management. You increase your scanning, you thoroughly investigate your environment and try to come up with a good analysis कि कौन से products, कौन सी strategies ज़्यादा कामयाब हो सकती है. You are willing to take certain risk. जबकि डिक्लाइन में आप देखें, हमने कहा जी मार्केट श्रिंक हो रही होती हैं, यू कांट थिंक ऑफ एन स्ट्रैटेजी कि इसको कैसे रिवाइव किया जाए. बहुत सारे लोग छोड़ के, आपकी सिंकिंग शिप को छोड़ के लोग निकल जाते हैं, ठीक है. लोग अपने शेयर्स डाइवर्स्ट कर देते हैं. यू अगेन यू रन योर कंपनी विद अ सिंपल स्ट्रक्चर, हाईली सेंट्रलाइज, यू वांट ईच एंड इन्फॉर्मेशन टू पास थ्रू यू, यू आर नो मोर इंटरेस्टेड इन एनवायरमेंटल एनालिसिस, यू शो एक्सट्रीम कंजर्वेटिज्म, you are less willing to innovate, or you're less willing to introduce new products and services, and you try to averse every risk. Generally हमने कहा जी कि डिक्लाइन की प्रॉब्लम्स को आप कैसे दूर कर सकते हैं कि if you can find some good information, you can diagnose, if you are capable of diagnosing that information and implementing change, if you are willing to learn from your mistakes and still maintain your commitment, and if you can manage an effective reorganization of your company, you may still be able to revive your company. Otherwise, the decline is certain. So, dear students, today we have talked about how organization structure changes and how how organizations grow, how the life cycle changes, and with the change in the life cycle, how the organization structure is supposed to change, and how the companies, they move from the birth to decline. And generally the decline is not 100%, you know. For many companies, the maturity is a very long cycle, or for a very long time they remain mature, or they try to keep or maintain their markets, and they generally do not need to innovate, or generally they just innovate on the periphery. So that's all for today. We will meet tomorrow in the lecture 12. Khuda Hafiz, Allah Hafiz.